Hallelujah. I apologize for being late. I'm so sorry. Hallelujah. Please come online. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sorry for being late. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Lord Jesus of Nazareth. Thank you. I welcome you all in the mighty name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There are more than 20 messages. Sorry for being late. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'm so grateful to the Lord that you are placing value on the word of the Lord, that you are learning the worth of the word of God, that you are becoming hungry for the word. Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Father, I adore you. I worship and I love you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Hallelujah. Thank you, Jesus. I can sing a bit of opera as well. Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए दुआ मांगे. Lord, I bless your name for this new day, brand new day with fresh promises, with mercies that are renewed, with mercies that are tailor-made for this day. And they are not singular mercy, but they are plural mercies. Rachem, Lord, we thank you for loving kindness. Hallelujah. We commend our lives into your hands, our heart, soul, mind, body to you, Lord Jesus. May your spirit move upon this broadcast, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your name. We bless your name, Lord Jesus. We bless you, bless you, bless you, Lord. We bless you and praise you, Lord. We bless you and praise you. We bless your name and praise your name. 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 Thank you, Jesus. Lord, as we meditate on your word, and as we meditate on that linen, the apparel that will be given to the bride of the Lamb, and as we meditate on the rich royal robe, the breastplate of righteousness, Father, may you teach the deep things of your word, and may your word change the way we live, the way we think, the way we behave, the way we do every chores of a life, and the way we make decisions. प्रभु तेरे कलाम की कुदरत को आज खोल. हालेलुया. यीशु मसीह के जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. आइए मैं सबसे पहले आपको एक वचन देता हूँ. जहाँ से कल हमने छोड़ा था उसको हम एंड में कनेक्ट करेंगे. हालेलुया. अभी मैं चाहता हूँ आप ज़करिया नबी की पुस्तक निकालें, बुक ऑफ ज़कराया. हालेलुया. ज़कराया
हालेलुया। और थैंक यू जीसस। ज़करिया चैप्टर नंबर 3, जकरिया का 3 अध्याय सुनिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? एंड ही शूड मी जाशुआ, हालेलुया, and he shewed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा टू एक्यूज हिम। एक दर्शन देख रहा है परमेश्वर का नबी जकरिया। अब ध्यान से सुनिएगा। जकरिया वो प्रॉफिट है जो इस्राएल की असीरी जो है 70 ईयर्स के लिए जो कैप्टिविटी थी, उस कैप्टिविटी के दौरान प्रोफेसी कर रहा है। इस्राएली लोगों ने, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, परमेश्वर की जुबलीज को ऑनर नहीं किया। गॉड गेव देम लॉ कंसर्निंग जुबलीज, बट दे नेवर ऑनर्ड द जुबलीज। तो जुबली क्या थी कि जब 50th ईयर आता था, 50th ईयर वॉज एन ईयर टू प्रोक्लेम द जुबली। द प्रीस्ट विल ब्लो द शोफार and a proclamation will go all over the land of Israel that everybody who was slave, everybody that owed any debt is free. जुबली का मतलब क्या होता था? महायाजक तुरी फूंकता था और ऐलान करता था कि ये 50वां साल है, यहोवा की जुबली है। यदि कोई किसी का गुलाम है वो आज़ाद हो जाएगा, अगर किसी ने किसी का कर्जा देना है तो वो माफ़ हो जाएगा। मतलब कि हर चीज़ अपने ओरिजिनल ओनर के पास वापस चली जाती थी। जैसे आपने मॉर्टगेज पे रख दी, गिरवी रख दी अपनी जायदाद, अपना सोना चांदी कुछ पैसे के लिए, तो जैसे जुबली की तुरी फूकी गई, शोफार हुआ, जिसके पास आपकी चीज़ें हैं वो आपको वापस लौटा देगा और कुछ भी नहीं लेगा आपसे। जुबली एक बहुत महत्वपूर्ण साल था, छुटकारे का साल। यहूदी लोगों ने जुबली को ऑनर नहीं किया क्योंकि उनके हार्ट करप्ट थे। उनको अपने गुलाम छोड़ने पड़ते। उन्होंने अगर किसी ने उनसे कर्जा लिया था वो माफ़ करना पड़ता, इसलिए उन्होंने जुबलीस को ऑनर नहीं किया। तो यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? 7 जुबलीस के लिए, 10 जुबलीस के लिए रादर, उनको परमेश्वर ने 7 टाइम्स पनिशमेंट दे दी। 70 साल के लिए वो असीरी में चले गए। लेकिन प्रभु 26 चैप्टर ऑफ लेविटिकस, 26 अध्याय लेविटिकस अगर पढ़ेंगे, प्रभु कहता अगर तुम असीरी में मेरी तरफ नहीं मुड़े तो मैं इसे और 7 गुना बढ़ा दूंगा, अगर फिर भी नहीं मुड़े तो और 7 गुना बढ़ा दूंगा। 2 बार लिखा है। और इस्राएल के साथ ऐसा ही हुआ। 70 साल की असीरी जो थी उसमें कुछ यहूदी लोग वापस आए, लेकिन बाकियों के ऊपर 70 इंटू 70 गुना 7, 490 ईयर्स की कैप्टिविटी आ गई। और कुछ के ऊपर 490 इंटू 7 की हो गई। अगर वो सारी कैलकुलेशन करेंगे तो 14 मई 1948 वो देगा 586 BC से, जब परमेश्वर इसराइलियों को वापस लाया और उनको देश दिया जिसे इस्राएल बोला जाता है। परमेश्वर अपने कलाम को पूरा करता है। तो उस समय का नबी है जकरिया, जब परमेश्वर के 3 दास हैं, एक एजरा है, एक नहेमिया है, एक जरूबाबिल है। ये तीनों बंदे जो हैं पर्शियन, जिसे आज ईरान बोलते हैं, ईरानियन गवर्नमेंट के प्रतिष्ठित लोग हैं। नेहमाया कप बेरर है, एजरा स्क्राइब है जो सब कुछ लिखता है, और जरूबाबिल एक गवर्नर है उस राज्य में। इन तीनों ये गॉडली बंदे हैं, यहोवा के धर्मी लोग हैं। इनकी अगुवाई में ये जत्थे लेकर आते हैं इज़राइल में यहूदियों के वापस। लेकिन आपको मालूम, जब वे ये लोग लौटते हैं तो ये केवल 2 गोत्र लौटते हैं, बल्कि 2.5 गोत्र। नॉर्दर्न किंगडम के, जिसे इज़राइल बोला जाता है, सदर्न किंगडम को यहूदा बोला जाता है, नॉर्दर्न किंगडम के 9.5 गोत्र या 10 गोत्र वापस नहीं लौटे। ये वापस लौटते हैं। और आप पढ़ते हैं नहेमिया की किताब में, एजरा की किताब में, आप क्या पढ़ते हैं कि वो शहर पनाह को बनाते हैं आके,
नहेमिया का काम था शहर पनाह को बनाना, और जरूबाबिल का काम था टेम्पल को बनाना, मंदिर को बनाना। और जो स्क्राइब था एजरा, उसका काम था जो याजक मिक्सअप हो गए थे किनके अंदर, अन्य जातियों के अंदर, उनको वापस निकालना, कॉन्सिक्रेट करना और उनको शुद्ध करना। उन्होंने अन्य जाति की स्त्रियां ब्याह ली थी। तो ये काम होता है उस समय। ये नबी जो है एजरा और नहेमिया की पुस्तक के संग जोड़ के इसको आप पढ़ेंगे, जकरिया और हज्जाई नबी की किताब, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो जकरिया नबूवत कर रहा है उस समय, तो जकरिया को दर्शन दिख रहे हैं, क्योंकि जरूबाबिल को भी अपोज किया जा रहा है। सनबलाट नाम का एक सीरियन फौजों का गवर्नर है, जिसने अपनी बेटी की शादी एक यहूदी याजक के साथ कर दी है, महायाजक के घराने में। और परमेश्वर का बंदा नहेमिया आके और एजरा आके याजकों को शुद्ध कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि तुमने जो अन्य जाति की स्त्रियां ब्याही हैं उन्हें त्यागो। लेकिन यहूदी लोग क्या कर रहे हैं, वो उसका एडवांटेज ले रहे हैं। कई यहूदी जिनकी जूइश औरतें हैं, यहूदी औरतें हैं, लेकिन वो बूढ़ी हो गई हैं, देखने में अगर सुंदर नहीं, उनको भी तलाक दे रहे हैं। तो मलाकी नबी उनको कंडेम कर रहा है कि यहोवा तलाक से नफरत करता है, वो तेरी जवानी की साथी है। तो ये सब बातों को आप अगर समझेंगे, फिर बाइबल समझ में आएगी मेरे भाई और मेरी बहन कि वचन में क्या लिखा है। वचन को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक कायदे से समझा जाएगा, तब आपको परमेश्वर की मनसा समझ में आएगी। एक आयत आधी निकाली, वहाँ से प्रचार करना शुरू कर दिया, दूसरी आधी निकाली, इसीलिए बहुत सी भ्रांतियाँ और गलत शिक्षाएं हैं। तो जकरिया दर्शन क्या देख रहा है? जकरिया देख रहा है कि यहोशुआ जो है वो हाई प्रीस्ट है। इस समय कौन हाई प्रीस्ट है? यहोशुआ। यहोशुआ क्या कर रहा है? हैकल के लिए महायाजक अलग किया गया है परमेश्वर के कामों के लिए। और एजरा क्या कर रहा है? बाकी याजकों और लेवियों को बाहर निकाल रहा है, शुद्ध कर रहा है। लेकिन यहोशुआ को कहाँ पहुँचाया गया है? स्वर्गीय कोर्ट रूम में। कहाँ खड़ा यहोशुआ? स्वर्गीय कोर्ट रूम है ये। ही शूड मी जाशुआ। आपको मालूम यहोशुआ का मतलब होता है साल्वेशन। यीशु मसीह का नाम भी है यहोशुआ, साल्वेशन, मुक्ति। कहाँ देखा हाई प्रीस्ट को खड़े हुए? द एंजल ऑफ द लॉर्ड, स्टैंडिंग बिफोर द एंजल ऑफ द लॉर्ड। ये जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, प्री इनकारनेट क्राइस्ट है। इसे थियोफनी बोलते हैं। मरियम की कोख में देह धारण करने से पहले जलाली यीशु मसीह, हालेलुया, ये वो है। मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ किससे मिला यीशु मसीह। तो कौन खड़ा है? हाई प्रीस्ट जो है, एंजल ऑफ द लॉर्ड, यीशु मसीह के आगे खड़ा है। और यीशु मसीह के राइट हैंड कौन खड़ा है? सेटन स्टैंडिंग एट हिज राइट हैंड टू रेसिस्ट हिम। शैतान खड़ा है राइट हैंड पे दोष लगाने के लिए। स्वर्गीय कोर्ट चल रहा है, हेवनली कोर्ट। कोर्ट में प्लेंटिफ है सेटन, और यहोशू के खिलाफ उसने कोर्ट केस किया है। सुने ध्यान से। एंड द लॉर्ड सेड अनटू सेटन, गौर से सुनिए। द लॉर्ड, यहाँ पे लॉर्ड के लिए वर्ड है योड हे वावे, यहोवा। लॉर्ड सेड अनटू सेटन, हसतान वर्ड है सेटन के लिए, हसतान। लॉर्ड योड हे वावे हसतान से कहता है द लॉर्ड रिब्यूक दी। फिर दूसरा वर्ड है योड हे वावे। पहले लिखा यहोवा कहता है शैतान से, यहोवा तुझे डांटे। ओ हसतान, शैतान, even the Lord hath chosen Jerusalem, rebuke thee, is it not the brand plucked out of fire? यहाँ पे दो यहोवा हैं। एक यहोवा प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा यहोवा स्वर्गीय पिता है। यहाँ पे लिखा था लॉर्ड सेड अनटू सेटन, ये यीशु मसीह बोल रहा है योडेवावे। किससे? हसतान से। क्या कह रहा है? द लॉर्ड रिब्यूक दी, यहोवा पिता तुझे डांटे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हसतान से कह रहा है
यहोवा पिता तुझे डांटे। और क्या लिखा है, इवन द लॉर्ड दैट हैथ चोजन जेरूशलम रिब्यूक दी, इज इट नॉट द ब्रांड प्लक्ड आउट ऑफ फायर। जिसने यरूशलेम को चुना है वो यहोवा तुझे डांटे। ये वो लुकटी नहीं है, लकड़ी नहीं है जो बलती आग में से निकाली गई है। अब देखिए कोर्ट रूम के अंदर जो विवाद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्यों परमेश्वर के महायाजक को सम्मन किया है कोर्ट में। टेंपल के अंदर आराधना नहीं हो रही, टेंपल के बाहर सैक्रिफाइस नहीं किए जा रहे, टेंपल में मनोरा नहीं जल रहा, ये टेंपल में ये आर्क ऑफ द कवनेंट के ऊपर ब्लड नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट सेकंड टेंपल में आर्क ऑफ द कवनेंट था ही नहीं, मालूम आपको, देयर वाज नो आर्क ऑफ द कवनेंट बिकॉज इट वाज ऑलरेडी हिडन। तो यहाँ पे लिखा है क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध क्यों चल रहा है। तीसरा वचन पढ़ें, नाउ जाशुआ, हाई प्रीस्ट जो है उसका नाम यहोशू है, अर्थात साल्वेशन। याशुआ जो है वॉज क्लोथ्ड विद फिल्दी गारमेंट्स एंड स्टूड बिफोर द एंजल। कैसे खड़ा है यहोशुआ, कैसे कपड़े पहने हैं, गंदे कपड़े पहने हैं। हालेलुया। शैतान ने कोर्ट केस क्यों किया हुआ है याजक के ऊपर, क्यों याजक को सम्मन किया गया है परमेश्वर की स्वर्गीय अदालत में, की वजह क्या है, क्योंकि कपड़े कैसे पहने हैं, गंदे। अब मैं एक वचन पढ़ दूं आपके लिए जल्दी से, यशायाह 64 उसका 6 वचन सुन लीजिए। बट वी आर ऑल एज अनक्लीन थिंग, हम सब गंदी घृणित चीज थे, एंड ऑल आवर राइचियसनेस आर एज फिल्दी रैग्स, हमारी अपनी धार्मिकता गंदे गले सड़े चिथड़ों की नाई है। एंड वी ऑल डू फेड एज लीफ, पत्ते की तरह हम झड़ जाते हैं। एंड आर इनिक्विटीज लाइक द विंड, और तेज आंधी की तरह हमारी इनिक्विटीज हैं, हैव टेकन अस अवे। हमारी इनिक्विटी जिसके ऊपर मैं आपको बहुत टीचिंग दे रहा हूँ, हमें विंड की तरह, हम सूखे पत्ते की तरह हैं और तेज आंधी हमें उड़ा के ले गई, और हम गले सड़े चिथड़ों की मानंद हैं अति पवित्र परमेश्वर यहोवा के जलाल के सामने। यहोशू के कपड़े कैसे हैं, फिल्दी हैं, फिल्दी कपड़े पहने हैं। वो बेटा जब लौटा, मैं आपको बता रहा हूँ, फिल्दी रैग्स पहन कर आया। उसके गारमेंट स्टेन्ड बाय सेक्सुअल इमोरालिटी, डिबॉचरी, परवर्जन, ईवल, कर्सिंग, ईवल वर्ड्स, बैड लैंग्वेज, हर तरह की गंदगी से स्टेन्ड कपड़े पहन कर आया है। लेकिन पिता क्या कहता है, पुट ऑन हिम द रिच रॉयल रोब, उसके ऊपर शाही पोशाक डालो लाके। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है ये यहोशू के ऊपर दोष लगा रहा है, कौन, शैतान। लेकिन दोष की वजह होती है, ऐसे वो दोष नहीं लगा सकता, उसको कोई लीगल चीज़ मिलेगी। वजह क्या है कि वस्त्र गंदे हैं। असीरी के अंदर पाप में, व्यभिचार में, गंदगी से वस्त्र गंदे हैं। और आगे लिखा है 4वां वचन, एंड ही एंसर्ड एंड स्पेक अनटू दोज दैट स्टूड बिफोर हिम सेइंग, एंड ही स्पेक। कौन बात कर रहा है, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह बोल रहा है। एंड ही एंसर्ड एंड स्पेक अनटू दोज दैट स्टूड बिफोर हिम सेइंग, टेक अवे द फिल्दी गारमेंट्स फ्रॉम हिम, इसके गंदे कपड़े उतारो। हालेलुया। एंड अनटू हिम ही सेड, अनटू हिम ही सेड, यीशु मसीह कहता है यहोशू हाई प्रीस्ट से, क्या कहता है, बिहोल्ड आई हैव कॉज्ड दाइन इनिक्विटी टू पास बिफोर दी। इनिक्विटी को कौन क्षमा कर सकता है, इनिक्विटी है डीप सिन, आपके अंदर की गहराई में चलने वाला पाप, आपके जीनोम, आपके डीएनए के संग चिपका पाप, आपके आरएनए को जो लैच ऑन कर लेता है वो पाप, बदकारी, जो पुश्त दर पुश्त, वचन में लिखा है 4थी पीढ़ी तक जिसकी सजा मिलती है, पीढ़ियों तक पास ऑन किए जाने वाली इनिक्विटी, इनिक्विटी डीप घृणित पाप। क्या कहता है प्रभु, प्रभु कहता है अनटू हिम ही सेड, उससे कहता याजक से, यहोशू से, बिहोल्ड आई हैव कॉज्ड दाइन इनिक्विटी टू पास फ्रॉम दी एंड आई विल क्लोथ दी विद चेंज ऑफ रेमेंट। देख मैंने तेरी इनिक्विटी को क्या कर दिया, हटा दिया। केवल यीशु मसीह इनिक्विटी को हटा सकता है। मैंने आपको बताया यीशु मसीह ने एक तो खाए वूंड,
यशाया 53:5 में घायल किया गया, वर्ड है वुंड्स, वो हमारे पापों के लिए घायल किया गया और हमारी इनिक्विटी के लिए ब्रूजेस खाए उसने। यीशु मसीह इंटरनली ब्लीड किया। यीशु मसीह की एक बाहर से ब्लीडिंग हुई, आपको मालूम, एक यीशु मसीह की इंटरनल ब्लीडिंग हुई। इंटरनली यीशु मसीह ब्लीड किया, अंदर से टिश्यूज से, लिगामेंट से ब्लीड किया। यीशु मसीह के ऑर्गन ब्लीड किए अंदर से, ताकि आपके अंदर जो गहराई में बैठी है बदकारी, उसे यीशु मसीह धो डाले। आपके अंदर गहरे घाव भी हैं, जख्म भी हैं, इमोशनल वूंड्स हैं, ब्रूजेस हैं, आपको अपनों ने दिए हैं, रिलेशनशिप में आपको मिले हैं, आपके पास्ट में ऐसे ब्लिस्टर हैं, घाव हैं जिनको आपने दबा के रखा है, उन्हें यीशु मसीह के पास लाएं। यीशु मसीह डीपली अंदर से वुंडेड किया गया है, क्रश किया गया अंदर से। आपको मालूम, ऑलिव को इकट्ठा किया जाता था कपड़े के अंदर, पतले कपड़े के अंदर एक स्टोन होता था बड़ा सा, उसके अंदर ऐसे डिप्रेशन बना होता था यूं, और एक नाली सी बनाई होती थी स्टोन के अंदर। उस डिप्रेशन में, थोड़े से डिप्रेशन के अंदर वो ऑलिव रखे जाते थे। एक ऊपर से स्टोन मारा जाता था जोर से, वो ऑलिव को एक स्टोन ऐसे जोर से आके क्रश करता था, और एकदम ऑलिव में से शूट करके जो ऑयल निकलता था उसे बोला जाता था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गाढ़ा, थिक, जिसे मैंने बताया यशाया नबी की पुस्तक 10 अध्याय के 27 वचन में लिखा है, योक जो है कैसे डिस्ट्रॉय होगी। ये योक है इनिक्विटी, ये ऐसी योक है कि जो आप करना चाहते हो आप नहीं करते, जो आप नहीं करना चाहते वो आप करते हो। पाप का दास बना के आपको रखती इंटरनली। वचन में लिखा है ये बिसेटिंग सिन है, हिब्रूज 12:1 में। ये वो पाप है जो बार बार आपको गिराता है, बार बार आपके घुटनों में चेन्स बंधी हुई हैं, आप दौड़ते हो थोड़े समय लेकिन फिर गिर जाते हो। यहाँ पे लिखा है इंटरनल यीशु मसीह की ब्लीडिंग आपकी इनिक्विटी को मिटाती है। यहाँ पे लिखा है आई कॉज दैन इनिक्विटी पास फ्रॉम दी, आई विल क्लोथ दी विद चेंज ऑफ रेमेंट, मैं तुझे नए वस्त्र दूंगा। एंड ही सेड लेट देम सेट ए फेयर माइटर अपॉन हिज हेड, सो दे सेट अ फेयर माइटर अपॉन हिज हेड, एक पगड़ी रखी सर पे सफ़ेद। एंड क्लोथ हिम विद गारमेंट एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टूड बाय, यीशु मसीह वहाँ खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। उसने कपड़े चेंज, यीशु मसीह आपकी इनिक्विटी धो सकता है और आपको नए गारमेंट दे सकता है। कितने गहरे, ऐसा कौन सा स्कार है जिसे यीशु मसीह स्टार नहीं बना सकता? ऐसा कौन सा वूंड है जिसे यीशु मसीह फ्रेगरेंस में नहीं बदल सकता? ऐसी कौन सी ऐश है जिसमें से यीशु मसीह ब्यूटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा हैवीनेस है कि यीशु मसीह आपको लाइट गारमेंट ऑफ प्रेज नहीं दे सकता? बट यू हैव टू कम टू जीसस ऑफ नाज़रेथ। ओनली जीसस कैन डिलीवर यू फ्रॉम इनिक्विटी। हालेलुया। यीशु मसीह का इंटरनल अंदर से बहने वाला गाढ़ा जो लहू है, पवित्र लहू है, यीशु मसीह की जवानी का पवित्र लहू है, वो आपके बंधन को तोड़ सकता है। हालेलुया। तो आपको मालूम राइट हैंड पे यहाँ पे कौन खड़ा है? सेटन खड़ा है। आपको मालूम राइट हैंड का मतलब होता है प्लेस ऑफ अथॉरिटी, अधिकार की जगह। जब यहोशू था, यहोशू के समय राइट हैंड पे कौन खड़ा है? सेटन खड़ा है। लेकिन आपके और मेरे लिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? एक वचन जल्दी से पढ़ें, इब्रानियों की पत्री निकालिए जल्दी से, इब्रानियों की पत्री, हालेलुया, उसका फर्स्ट चैप्टर निकालें। इब्रानियों की पत्री फर्स्ट चैप्टर और उसका 3rd वर्ड्स आपके लिए पढ़ता हूँ। हु बीइंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी, यीशु मसीह की बात करते हैं। हु बीइंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी एंड द एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन। यीशु मसीह कौन है? यहोवा परमेश्वर के जलाल की महिमा है, और यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर की शख्सियत का प्रतिबिंब है पूरे का पूरा। यीशु मसीह यहोवा का प्रगटीकरण है। यहोवा परमेश्वर जो आत्मा है, यहोवा परमेश्वर जो अगम्य ज्योतों में वास करता है,
यहोवा परमेश्वर जो विराट है, यशस्वी है, महाप्रतापी है, सृष्टि का रचिता है, ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसे देख के कोई जीवित रह नहीं सकता, जो तेज पुंज है, हालेलुया हालेलुया, वो महाप्रतापी परमेश्वर की संपूर्ण प्रगटीकरण है यीशु मसीह। जिसने यीशु मसीह को देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता का संपूर्ण, जिसे पंजाबी में कहते हैं इन बिन उतारा, है प्रभु यीशु मसीह। एक्जेगियोमाय वर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसने पिता को प्रकट किया। ही ग्रीक वर्ड है एक्जेगियोमाय, पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे पिता को उसने दिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, यीशु मसीह ने कहा मुझे देखो, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। फिर यीशु मसीह के चेलों को राज्य का सुसमाचार मिला। यीशु मसीह के चेले लोगों को, आपको मालूम क्या दिखाते थे? यीशु मसीह दिखाते थे। फिर चर्च अंधेरे में चली गई। फिर जो पास्टर पैदा हुए वो लोगों को चर्च का रास्ता दिखाते हैं। यीशु मसीह नहीं दिखाते। समझ रहे ट्रांजिशन आप? अपोस्टल यीशु मसीह को दिखाते थे ऐसे। अब लोगों को चर्च दिखाई जाती कि 5 एतवार आइए, 7 एतवार आइए, जैसे अन्य जातियों के अंदर चलती है ना दकियानूसी बातें, शगन अपशगुन की सब बातें। यीशु मसीह को नहीं दिखाया, यीशु मसीह ने पिता को दिखाया। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, दुनिया को मुझे दिखाओ, मुझे देखने दो तुम्हारे में से दुनिया को। चेले दिखाते रहे यीशु मसीह को। चेलों के बाद जब चर्च अंधकार में गई तो फिर जो आगे की लीडर्स हुए उन्होंने बोला चर्च को देखो, अब आप 5 संडे आओ, 7 संडे आओ। देखते हैं आप ट्रांजिशन, चेंज क्या आई। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? वो प्रतिबिंब है मुकम्मल। वो कहता जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। एंड अपहोल्डिंग ऑल थिंग्स बाय द वर्ड ऑफ हिज पावर। पूरी कायनात को कैसे थामा यीशु मसीह ने? अपने मुंह के जिंदा कलाम की कुदरत के द्वारा। ये उसके कलाम की कुदरत है जिसे वैज्ञानिक ग्रेविटी बोल देते हैं। उससे थामा है। व्हेन ही हैड बाय हिमसेल्फ पर्ज्ड आवर सिंस, और उसने हमारे पाप सारे, हमारा पिशा ट्रांसग्रेशन, हमारी खता, हमारे सिन, हमारी अनराइचियसनेस, हमारा अवान, हमारी इनिक्विटी, सब कुछ एक बार मुकम्मल तौर पे कीमत अदा कर दी और मिटा दिया नामो निशान और धो दिया। पर्ज्ड आवर सिंस। ये काम करने के बाद क्या किया? सैट डाउन ऑन द राइट हैंड ऑफ मैजेस्टी ऑन हाई। अत्महान परमेश्वर के सज्जे हाथ जा बैठा यीशु मसीह। राइट हैंड पे बैठा है यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता के, सृष्टि के रचिता यहोवा परमेश्वर के राइट हैंड पे यीशु मसीह बैठा है। आपको मालूम, पुराने ऐतनामे में महायाजक अति पवित्र स्थान में साल में एक बार जाता था योम किपुर के दिन, महायाजक बन के, और वो खड़ा रहता था प्रभु की हजूरी में, बैठ नहीं सकता था। खड़ा होकर उपासना करता था। पहले अपने पापों का प्रायश्चित करता था बुल के खून के द्वारा, बैल के लहू के द्वारा, फिर प्रजा के पापों के लिए लहू उंडेलता था। इधर ये जो आर्क ऑफ द कवनेंट है इसके ऊपर उसे अपने पापों की भी क्षमा चाहिए होती थी। लेकिन हमारा महायाजक है यीशु मसीह, जो मलकी सिदक सरीखा महायाजक है, जिसे अपने पापों के लिए बुल का लहू लेके जाना नहीं पड़ा, जिसको आपके और मेरे पापों के लिए भी बकरे, छतरे और मेमनों का लहू लेके जाना नहीं पड़ा। वो भी गया अति पवित्र स्थान में। इसलिए मरियम मगदलिनी से कहता मुझे पकड़ के मत रख, क्योंकि मुझे पिता के पास जाना है हाई प्रीस्ट की सेवा पूरी करने के लिए। वो प्रभु को पकड़ के रखे है, छोड़ नहीं रही प्रभु को। प्रभु कहते हैं मुझे जाना है पिता के पास, मुझे हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री करनी है। यीशु मसीह आपको मालूम जा क्यों नहीं सका? मरियम मगदलिनी के दिल में ऐसी खोज थी प्रभु के लिए, प्रभु को उसे मिलने आना पड़ा। प्रभु ने पिता के पास जाना था और पिता के हजूर में महायाजक की सेवा करनी थी। अपने वचन में लिखा वो अपने ही लहू के द्वारा, और पृथ्वी की हैकल में नहीं गया, वो स्वर्गीय हैकल में गया और अपना ही लहू उसने यहाँ जाके उंडेला आर्क ऑफ द कवनेंट पे। जब उसने अपना लहू यहाँ पे आर्क ऑफ द कवनेंट के ऊपर उंडेला, परमेश्वर की सारी जजमेंट इसके ऊपर आ गई, परमेश्वर की सारी पनिशमेंट, परमेश्वर का सारा जस्टिस, परमेश्वर का सारा न्याय, परमेश्वर की होली, परमेश्वर की जितनी डिमांड थी यीशु मसीह के लहू ने पूरी कर दी। ऑल द डिमांड्स ऑफ होली गॉड वर मेट बाय द ब्लड ऑफ जीसस। सो गॉड gave Jesus
लैविश फॉरगिवनेस फॉर द सिन ऑफ द होल वर्ल्ड। यीशु मसीह ने वो वाउचर ले लिया पिता से, वो कवेनेंट ले लिया। इसलिए वचन में लिखा, अब जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो बचाया जाएगा। ओनली ही हुएवर विल कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड। क्योंकि यीशु मसीह यहां पे लहू उंडेल के, उस लहू ने परमेश्वर के जस्टिस को ऐसे सोख लिया, परमेश्वर के जजमेंट को सोख लिया, उस लहू ने परमेश्वर की होली डिमांड को सोख लिया और पूरा कर दिया यीशु मसीह के ब्लड ने। परमेश्वर का जस्टिस, जुडिशरी की सारी डिमांड पूरी हो गई, लीगल एस्पेक्ट पूरा हो गया और कॉन्डेमनेशन के चार्जेस पूरे हो गए, एक्यूजेशन के चार्जेस पूरे हो गए, और जो पनिशमेंट की डिमांड थी उस पनिशमेंट को भी यीशु मसीह के ब्लड ने अपने आप में ले लिया, जेल लिया यीशु मसीह के लहू ने। पूरा जस्टिस पूरा हो गया हेवन का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। अब यीशु मसीह आपकी इनिक्विटी क्षमा कर सकता है, केवल यीशु मसीह ये काम कर सकता है। आपकी इनिक्विटी केवल यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह के पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है हर पाप को रिमिट करके लीगल पेपर वर्क देने की। तो यहां पे कहां खड़ा है शैतान? राइट हैंड पे। लेकिन अब राइट हैंड पे कौन बैठा है जाके पिता के? जीसस क्राइस्ट। पहले कौन खड़ा था राइट हैंड पे? शैतान, और दोष लगाता था। अब कौन बैठा है? यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है होल्डिंग ऑल थिंग्स बाय द वर्ड ऑफ हिज पावर व्हेन ही हैड बाय हिमसेल्फ पर्ज्ड द सिन सैट डाउन ऑन द राइट हैंड ऑफ द मैजेस्टी ऑन हाई। महाप्रतापी परमेश्वर दे सज्जे हाथ जाके यीशु मसीह बैठ गया। यीशु मसीह पिता के राइट हैंड पे बैठा है, उसको खड़े होने की जरूरत नहीं है। बैठने का मतलब ही इज एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ही इज द इंचार्ज। उसकी हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। हालेलुया। वो पिता के राइट, अब आपके लिए, यहोशू के लिए राइट हैंड पे शैतान दोष लगा रहा था, लेकिन अब आपके लिए राइट हैंड पे आपका कोई वकील बैठा हुआ है। वचन में लिखा, यूहन्ना कहता है, हे मेरे बच्चों मैं तुमसे लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, पर अगर कोई पाप करे तो हमारा वकील है, लीगल डिफेंस है, लीगल अटर्नी है यीशु मसीह। स्वर्ग में आपका एक लीगल अटर्नी है जिसका नाम है जीसस क्राइस्ट। उसको, उसके ब्लड के नीचे आपको आना है। आपकी इनिक्विटी, आपकी ट्रांसग्रेशन, पिशा, आपका अवान, पिशा, आपकी खता, सिन की अनराइचियसनेस, सब उसके ब्लड के नीचे होनी चाहिए। हालेलुया। और जब वो ब्लड से फॉरगिव करता है, फिर वो कहता है गो सिन नो मोर। वो आपको लाइसेंस नहीं देता पाप और बदकारी में बने रहने का। उसका कलाम कहता है जो पाप करता है हैबिचुअली, उसके लिए ग्रीक वर्ड है ही दैट हैबिचुअली कंटिन्यूज टू सिन इज अ स्लेव ऑफ सिन। वो पाप का गुलाम है, जो लगातार पाप में बना रहता है वो पाप का गुलाम है। वो परमेश्वर का दास नहीं है, परमेश्वर का गुलाम नहीं है, पाप का गुलाम है। तो वचन में लिखा है क्यों दोष लगा रहा है? दोष इसलिए लगा रहा है क्योंकि गारमेंट क्या है? गंदे हैं। हालेलुया। लेकिन अब देखिए ट्रांजिशन क्या है। अब राइट हैंड पे हमारा एक अटर्नी है जिसे खड़े होने की जरूरत नहीं है। ही इज इन कंट्रोल, ही इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ द फादर। और वो दिन रात क्या लिखा है? आपके और मेरे लिए क्या करता है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। बेनती कर रहा है। तो पिता क्या कहता है? पिता कहता है रिच रोब लेकर आओ, रॉयल रोब, और मेरे पुत्र के ऊपर डालो। हालेलुया। ये है राइचियसनेस जो हमें इम्प्यूट की गई है, पिता ने दी है। ये राइचियसनेस हमें मिलने के बाद हम उसके सन्स एंड डॉटर्स बने हैं। इस राइचियसनेस ने हमें लीगल एंट्री दे दी यहाँ पहुँचने की। ये कल मैं आपको बता रहा था, लेकिन अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात कल जो कट गई वो आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य में चलें। ये तो आपने सुना, इम्प्यूटेड राइचियसनेस, वी हैव बीन मेड राइचियस, क्राइस्ट हैज गिवन अस हिज राइचियसनेस, वी हैव ऑब्टेन्ड राइट स्टैंडिंग विद गॉड। आई नो यू लिसन टू दिस मैसेज। वेस्ट ने ये प्रीच किया, लेकिन उन्होंने क्या प्रीच नहीं किया वो अब आपको बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब ये ध्यान से सुनिए।
अब कल जो हम कर रहे थे उसके संग आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 7, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन। लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस, आइए आनंद करें और खुशी मनाएं। एंड गिव ऑनर टू हिम, उसे आदर दें, यहोवा को। फॉर द मैरिज ऑफ द लैम इज कम, मेमने की शादी आ गई है भाई और बहनों। एंड हिज वाइफ हैथ मेड हर सेल्फ रेडी, अब उसे वाइफ का टाइटल दिया गया, पहले वो ब्राइड थी। हालेलुया। ब्राइड से वो वाइफ के टाइटल में पहुंच गई है, दुल्हन। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? एंड टू हर वॉज ग्रांटेड, उसे क्या दिया गया? दैट शी शुड बी अरेड इन फाइन लिलन, उसको फाइन लिलन, मैंने बोला याजक लिलन का क्लोथ पहनता था। इसके ऊपर मैंने एक दिन टीचिंग दी आपको कि उसका जो गारमेंट था याजक का, परमेश्वर क्या कहता है मूसा से? परमेश्वर मूसा से कहता है, हारून तेरे भाई के शरीर पे जो पोशाक है याजक की, माँ याजक की, उसे उतार ले, बिकॉज ही मस्ट डाई एंड नेक्स्ट जनरेशन मस्ट कम इन। आपको मालूम, जब तक हारून वो ड्रेस को पहने रहता, लिलन की जो यहोवा ने दी थी, तब तक वो मर नहीं सकता था। उस ड्रेस को डेथ नहीं छू सकती। उस ड्रेस को पहन के, जिसके ऊपर ब्रेस्ट प्लेट को पहन के, जिसके ऊपर 12 स्टोन होते थे, उसके द्वारा ही वो यहोवा के, ये जो जलाल है यहोवा का, इसके पास जा सकता था। लेकिन तो भी कैसे जाता था? इधर एक हाथ में होता था जिसे हम बोलते हैं, एक वेसल होता था, गोल्डन वेसल, जिसके अंदर धूप डाली होती थी, इंसेंस। और वो इंसेंस बहुत कीमती चीज़ों से बनती थी। किसी दिन आपको बताऊंगा इंसेंस के इंग्रेडिएंट क्या थे, जिससे वो इंसेंस बहुत बेशकीमती नायाब फ्रेगरेंस उसमें से निकलती थी। उसे डुप्लीकेट फार्मूले को कोई नहीं कर सकता था, उसकी डेथ हो जाती थी जो डुप्लीकेट करता था। वो कीमती चीज़ों से बनता था, उसको ऐसे हाथ में लेके महायाजक जाता था, उसमें से धुएं का जो बादल उठता था, वो बादल महायाजक को रैप्चर करके दूसरी तरफ ले जाता था, ट्रांसपोर्टिंग डिवाइस बना देता था। वो जलाल का बादल बनाता था, वो जो धुआं उठता था उसमें से, जिसको ऐसे लेके जाता था साथ में, इंसेंस वाला पॉट जो होता था। क्योंकि वो जो कर्टन है वो लगभग 6 इंचेस थिक है और लगभग 500 किलो वेट था उसका। उसको 72 कुंवारी लड़कियां बनाती थी और उसके अंदर अलग अलग जानवर की खाल लगी होती थी, उसके अंदर आइवरी की, हाथी के दांत की मीनाकारी की होती थी, सोने की नक्काशी की होती थी, चांदी की नक्काशी, उसके ऊपर बहुत गहरी डिटेल है उस कर्टन की। लेकिन उसमें डोर नहीं था, दरवाज़ा नहीं था। तो महायाजक को वो जो धुएं का बादल उठता था वो ट्रांसपोर्ट करता था दूसरी तरफ। हालेलुया। और आपको मालूम, क्योंकि डोर इसलिए नहीं था क्योंकि अभी वो आया नहीं था जिसने कहना था मैं दरवाज़ा हूँ। यीशु मसीह है दरवाज़ा। हालेलुया। और आपको मालूम, यीशु मसीह तंग रास्ता भी है, नैरो वे। और आपको मालूम, नैरो वे के लिए जब यीशु मसीह कहते हैं एंटर थ्रू द नैरो वे, जो मैंने आपको बताया था ना, ट्रिबुलेशन के लिए वर्ड है थिलेपिस। थिलेपिस का मतलब होता है ट्रिबुलेशन, सताओ, दुख। नैरो वे के लिए भी जो शब्द है वो भी वही है, सताओ का मार्ग है ये। यीशु मसीह का मार्ग चौड़ा नहीं है जैसा प्रेजेंट किया गया। एक और बंगला, एक और गाड़ी, एक और मर्सिडीज, एक और ऑडी, एक और BMW, सो द सीड गेट इट दैट, सो द सीड गेट इट दैट, और बंगला और वीजेज और ये ऐसी ये नहीं है मार्ग यीशु मसीह का। बड़ा अमीन, बड़ी बरकत, ये मार्ग है यीशु मसीह का मार्ग है तंग मार्ग। थिलिप्सिस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब टाइट होके जाना पड़ेगा आपको, इसको मारना पड़ेगा। अपने आप का पहले इनकार करे, फिर मेरे पीछे हो ले, फिर क्रूस उठाए, फिर मेरे पीछे हो ले। ये मार्ग है भाई और बहनों। इन्होंने कोई और मार्ग पेश किया है। पढ़ लो बाइबल आप। ये मत सोचो कि वेस्ट के बड़े बड़े प्रीचर प्रीच कर रहे हैं तो वो सही है। इसको पढ़ो, कलाम को ढूंढो, इसे कितनी बड़ी डिसेप्शन हुई है। तो वचन में क्या लिखा है कि इसको लिलन दी गई, फाइन लिलन। हालेलुया। फाइन लिलन दुल्हन को पहनने के लिए दी गई है। और क्या लिखा है? अरेड इन फाइन लिलन। और अगला वर्ड है क्लीन।
कैथरोस वर्ड है ही ग्रीक का, कैथरोस, जिसका असली मतलब होता है प्योर। प्योर, क्लीन ही नहीं, प्योर। प्योर लिलन दी गई है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, अरेड इन फाइन लिलन क्लीन एंड वाइट। जो उसने गारमेंट पहना है ना दुल्हन ने, अब ध्यान से सुनना, ये फाइन लिलन है, बुसनोस ग्रीक वर्ड है, बुसनोस, और ये प्योर है, कैथरोस ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ये क्या है, वाइट है। इसके लिए वर्ड है लेम्प्रोस, ग्रीक वर्ड लेम्प्रोस, G2986। आप वेबसाइट पे जाके ना चेक कर सकते हैं ये वर्ड जो मैं आपको देता हूँ, अक्सर देता हूँ ताकि आप रियल मीनिंग ढूंढें। G2986, लेम्प्रोस का असली मतलब होता है ब्राइट शाइनिंग लाइक अ लैम्प। ये जो वर्ड है, ये वर्ड डिराइव होता है फोटोन से। ये जो बल्ब देख रहे हैं आप इधर मेरे ऊपर, बल्ब जग रहा है, रोशनी जल रही है, इसके अंदर फोटॉन्स दौड़ रहे हैं तो रोशनी पैदा कर रहे हैं। जैसे ये बल्ब जगता है, बिजली होती है, ऐसी रोशनी उसके कपड़ों में से निकल रही है दुल्हन के। जो दुल्हन को कपड़े दिए गए हैं वो प्योर हैं और उसके अंदर से ऐसे रोशनी निकल रही है। जैसे देखा ना आपने, कई ऐसे बाबा जी की तस्वीरें होती है, हाथ में से ऐसे रोशनी निकलती है, ऐसे लाइट ऊज आउट कर रही है। लेम्प्रोस वर्ड है, like electricity is getting oozing out of the dress she is wearing. She has been given a dress which is katharos, clean, not merely clean but absolutely pure, and lamps are burning out of her dress. Light is radiating, like translucent light is coming out of the garment she is wearing. और आगे क्या लिखा है, for fine linen is the righteousness of saints. ये जो फाइन लिलन है ये क्या है, ये राइचियसनेस ऑफ सेंट्स है। आपने वो सेगमेंट तो सीखा है, इंप्यूटेड राइचियसनेस, जो मैं कल आपको बता रहा था। क्राइस्ट राइचियसनेस हैज बीन इंप्यूटेड ऑन अस। मेरे अकाउंट को स्क्वेयर कर दिया गया, मेरे अकाउंट नेगेटिव में थे, डेफिसिट में थे। माई डेबिट वॉज फिल्ड विद जीसस एसेट्स, और मुझे परमेश्वर ने एट पार कर दिया, मेड मी द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। लेकिन जब मुझे राइचियस बना दिया गया, मेरे अंदर इंप्यूटेड राइचियसनेस आ गई, उसके बाद मैं परमेश्वर के मार्गों पे चला। I walked in the fear of the Lord. I walked in the righteousness of God. I walked in the holiness of God. I walked in the justice of God. I kept the commandments of God. I walked through the narrow way. I crucified myself. I denied myself. I lived a victorious life over the lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. I overcame Satan, sin, and forces of darkness. I lived a life that pleased the Father. I continually followed him and lived a righteous, holy, pure life by the righteousness that was imparted unto me. तो मैं जो ये पवित्र और धर्मी जीवन परमेश्वर के सन्मुख जीता था प्रतिदिन, उस पवित्र और धर्मी जीवन की कुदरत के द्वारा ये गारमेंट बना है जो मैं मैरिज पे पहनूंगा। इट इज लिखा है द राइचियसनेस ऑफ द सेंट्स। द वर्ड फॉर राइचियसनेस इज डिकोमा, डियोकोमा, डियोकोमा या सदीका। मैंने आपको बताया था हिब्रू वर्ड है सदीका। डियोकोमा हाजिया, पवित्र या सेट अपार्ट, अलग किए गए, परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग जो धर्मी जीवन जीते हैं, पवित्र चाल चलन के साथ प्रभु के मार्गों पे चलते हैं, परमेश्वर की रोशनी को अपनी लाइफ से रेडिएट करते हैं, वो फल पैदा करते हैं। उस अंगूर की बेल में सटे हैं, उनको बहुत फल लगता है, और वो विक्टोरियस जीवन, जयवंत जीवन जीते हैं, उनको फल लगता है, और वह परमेश्वर के प्रति वफादारी से जीवन जीते हैं और वो जय पाते हैं। 3 बातें कहता है यीशु मसीह, जो जय पाए, जो फल लाए और जो वफादार रहे। वो जय पाते हैं शरीर पे, संसार पे, शैतान पे, और उनको फल लगता है, वो फलदार दाखलताएं होते हैं, और वो परमेश्वर के लिए वफादार होते हैं, और ये आज्ञाएं, परमेश्वर का कलाम उनके अंदर होता है। आपको मालूम प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा है कि शैतान नीचे गिराया जाता है, और शैतान किनके पीछे जाता है? जो यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं। एक नामधारी ईसाई शैतान का टारगेट नहीं है। एक नामधारी जीवन जीने वाला ईसाई
पाप में, बदकारी में, केवल नाम मात्र का ईसाई जो है, उससे शैतान को कोई खतरा नहीं है। शैतान कभी उसके पीछे नहीं जाता। किनके पीछे जाता है? 12 अध्याय में लिखा है रेवलेशन में, दे हु कीप द टेस्टिमनी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड दे हु कीप हिज कमांड्स। जो उसकी आज्ञाओं को अपने अंदर रखे धर्मी जीवन जीते हैं। ये जो गारमेंट है दुल्हन का, ये गारमेंट दुल्हन ने बनाया है प्रभु के पीछे धर्मी जीवन जी के। ये वो गारमेंट नहीं है जो जीसस क्राइस्ट ने दिया है, ये वो गारमेंट है विच इज द राइचियसनेस ऑफ सेंट्स। एक है राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट जो आपको और मुझे दी गई, जिसके द्वारा हम बचाए गए। जब हम बचाए गए, देन वी लिव आउट राइचियसनेस। ये डिमेंशन गॉस्पेल की कभी नहीं बताई वेस्ट ने, क्योंकि हाइपर ग्रेस थियोलॉजी इसे नहीं सिखाती है। वो जो फॉल्स हेरेटिकल टीचिंग है, दैट डजंट टीच दिस थिंग। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रेरित पौलुस, अभी मेरे पास टाइम नहीं, आप पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में पूरी टीचिंग है प्रेरित पौलुस की। प्रेरित पौलुस बताता है पृथ्वी के शरीर उनकी महिमा अलग है, फरिश्तों के शरीर की महिमा अलग है, जीवित जंतुओं के शरीर की महिमा अलग है, कैरुबीम के शरीर की महिमा अलग है, सराफीम के शरीर की महिमा अलग है। फिर वो कहता है जो सेलेशियल बॉडी हैं, जो आसमानी शरीर मिलेंगे, उनका जलाल अलग है, जो जिस्मानी शरीर है उनका जलाल अलग है। फिर दानियल नबी अपनी पुस्तक में लिखता है जो लोगों को परमेश्वर का सच्चा कलाम सिखाते हैं, सच्चे दास हैं, सच्चा कलाम सिखाते हैं और लोगों को धर्मी बनाते हैं, वो परमेश्वर के आकाश में तारों की मानंद चमकेंगे। आप देखें, विज्ञान भी बताता है हर तारे का जलाल अलग है, हर तारे का नूर अलग है। अलग अलग गैलेक्सीज, मैंने बहुत रिसर्च की, अध्ययन किया है। इट्स मेस्मराइजिंग वर्ल्ड। आप एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करें जरा ऊपर तारों की, आप हिल जाएंगे। मैं बहुत से प्लानिटेरियम में गया हूँ सीखने के लिए और बहुत सी बुक्स पढ़ता हूँ। इट इंट्रीग्स मी ऑलवेज, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वास्ट वर्ल्ड। I cannot even imagine how vast this is that God created. कितने स्टार्स हैं, कितनी उनकी ग्लोरी फर्क है। बिलियंस इंटू बिलियंस, ट्रिलियंस इंटू ट्रिलियन स्टार्स हैं, सबकी जलाल अलग है। ऐसा ही सब विश्वासियों का होगा। हर एक विश्वासी का, हर एक प्रभु के बंदे का एक जैसा जलाल नहीं होगा, एक जैसा नूर नहीं होगा सबका। जैसे कुछ तारे बड़े फेड से होते हैं, कुछ तारे बहुत ब्राइट होते हैं जब ज़मीन से आप देखते हो। अगर आप टेलीस्कोप से देखो तो नज़ारा ही अद्भुत है। आप उन तारों की ओर आकर्षित होते हैं जिनका नूर बहुत खूबसूरत है। ये आपके हाथ में है, आपकी ड्रेस के अंदर से कितनी रोशनी निकलेगी। कैसा जीवन आप जी रहे हैं प्रभु के लिए। प्रभु का कलाम आपके अंदर है, प्रभु की आज्ञाओं में जीवन जीते हैं, प्रभु के डर का आत्मा आपके ऊपर है। पाप, हरामकारी, बदकारी, चोरी, ठगी, हर तरह के गंदे पाप से दूर भागते हैं आप। यीशु मसीह के भय में जीवन जीते हैं। ये कलाम, ये परमेश्वर का वचन, इसकी रोशनी आपके अंदर जगती है, जलती है रोशनी आपके अंदर। आप मसीह के लिए क्रूसित जीवन जी रहे हैं, क्रूस पे चढ़ा हुआ, या संसारिक जीवन जी रहे हैं। यीशु मसीह के लिए खालिस जीवन जी रहे हैं, दिखावटी बनावटी जीवन, या परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस देते हैं चर्च के अंदर, बड़े बड़े लीडर, परफॉर्मेंस वाला जीवन है उनका। स्टेज का और है और बाकी और है। कैसा जीवन आप जी रहे हैं? ये आपका जीवन आपकी ड्रेस की रोशनी को डिसाइड कर रहा है। इटर्निटी के लिए ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स आपका नूर वही रहेगा। ये आपको पृथ्वी के ऊपर ट्रेनिंग का टाइम मिला है। ये ट्रेलर है, इसमें आप अपनी ड्रेस तैयार करें। प्रिपेयर योर ड्रेस। ब्राइड के लिए ब्राइडल गाउन बहुत बड़ी चीज़ होता है। टियारा, रीत और सब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बहुत तमन्ना होती है कि उनकी वेडिंग पे ऐसा हो ऐसा हो। क्या आपके अंदर तमन्ना है? इटर्नली कौन सा कपड़ा पहनेंगे आप? ये कैसा जीवन आप जी रहे हैं? अब पाप में, अधर्म में, गुप्त पापों में जीवन जियोगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु की ओर लौटें, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पण करें। यू कैन नॉट प्ले गेम्स विद गॉड। ही सीज यू इन एंड आउट।
ताकि आप एक नूरानी जीवन जिए। आपको मालूम, आपको और मुझे बुलाया गया है। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसके एक छोटे से प्लेनेट पे हम बैठे हैं कॉल्ड अर्थ। पता नहीं कितना जाइगेंटिक है ये। 4 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज अभी बता रहे हैं, 400 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। परमेश्वर इन पे राज करने के लिए आपको बुला रहा है। आपकी डोमिनियन होगी गैलेक्सीज के अंदर, अलग अलग जगह डोमेन देगा परमेश्वर आपको। ये अभी आपका जीवन कैसा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। लकड़ी का, घास का और फूस का काम है, 3 तरह का, वुड स्टबल है। और सोने का, चांदी का और कीमती पत्थरों का काम है। विश्वासी भी कर रहे हैं और पासवान सेवक भी कर रहे हैं। उनके काम सोने के, चांदी के, कीमती पत्थर के होंगे या लकड़ी, घास या फूस के होंगे। जो लकड़ी, घास, फूस के होंगे वो यीशु मसीह के नूर में जल जाएंगे और कुछ भी नहीं हाथ आएगा लोगों के। लेकिन जो काम सोने, चांदी, कीमती पत्थर के होंगे वो और खालिस हो जाएंगे। कौन सा काम कर रहे हो आप? लकड़ी, घास, फूस का या सोना, चांदी, कीमती पत्थर का? डिसीजन आपका है। इटर्निटी, योर इटर्निटी हैंग्स ऑन हाउ यू लिव योर लाइफ फॉर जीसस नाउ। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी एक भाई की, दिल्ली के। मैं अक्सर कहता हूँ स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना अलग बात है, स्वर्ग के राज्य को इनहेरिट करना अलग बात है। 2 बातें हैं। एक है स्वर्ग के राज्य में केवल दाखिल होना, दूसरा है स्वर्ग के राज्य में मिरास हासिल करना। तो एक भाई था दिल्ली में, वो अक्सर प्रभु में आया, हिंदू परिवार से, पढ़ा लिखा था। उसकी तमन्ना थी कि मैं कनाडा चला जाऊँ। उसके लिए मैंने प्रार्थना की 2-3 साल। वो कहता था, ब्रदर अगर मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, जस्ट लव कनाडा, मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ी तो मैं लगाऊंगा। MA MPhil था वो बंदा। वो चला गया, श्योर इनफ कनाडा पहुँच गया। और वहाँ पे टोरंटो में हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग थे, उनको मिला। और आपको मालूम उसे जॉब क्या मिली? उसे जॉब वही मिली जो वो चाहता था। वो टोरंटो एयरपोर्ट पे झाड़ू लगाता था। और बड़ा खुश जब वो पहुंचा, मुझे फ़ोन करता था रोज़, दूसरे दिन रोज़ फ़ोन करना। मैं पहुंच गया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा खुश। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए। फिर उसकी कॉल आनी कम हो गई। फिर जब उसकी कॉल आई 3-4 महीने के बाद, मैंने पूछा क्या हुआ? वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो जॉय नहीं है, वो मज़ा नहीं है। तो बोला, ब्रदर क्या करूं, मैं देखिए इतना पढ़ा लिखा हूं, मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग भी की है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मेरे को $8-9 मिलते हैं घंटे के। यहाँ पे अफ्रीका के काले लोग हैं, वो अनपढ़ हैं बिल्कुल, वो मेरे से ऊपर सुपरवाइज़र बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। तो वो जो उसको कनाडा में एंटर होने की खुशी थी वो ख़त्म हो गई। कईयों के साथ ऐसा होगा। There will be eternal regret. There will be. I can show you, prove it to you from the Word of God. You will realize that you could have used your life in much, much better way. That could have produced much greater reward, eternal reward. And your position in the kingdom could have been something else. But you did not use your time, your talents, your potential, everything that the Lord gave you appropriately. You squandered everything. उस उजाड़ू बेटे की तरह आप भी उजाड़ू बेटे हैं, क्योंकि आप भी उजाड़ रहे हो अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज, जो कुछ आप कर सकते हो प्रभु के लिए। अब अपने आप को इक्विप नहीं कर रहे आप। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज अपनी लाइफ सरेंडर करें प्रभु के आगे कि आपकी ड्रेस जो होगी ट्रांसल्यूसेंट होगी, ग्लोरी रेडिएट करेगी उसमें से। प्रार्थना करें प्रभु से, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ। लेट्स प्रे। फादर, दीज आर सीरियस somber words that I have spoken, and these are real words. This is bitter reality that many people who are squandering their time, their talent, and everything that you gave them, just उसे उजाड़ रहे हैं, तेरे लिए जी नहीं रहे, शरीर के लिए शरीर के कामों के लिए, संसार की अभिलाषाओं के लिए जी रहे हैं। खुदावंद उन लोगों को चुनौती दे, वो तेरे लिए जिएं पवित्र आत्मा।
तेरे लिए प्रभु। वो जो वस्त्र हैं वो पवित्र संतों के काम हैं। हालेलुया। जैसे काम हम कर रहे हैं प्रभु अब पृथ्वी पे, कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं तेरे पीछे, वो हमारे वस्त्रों को डिसाइड करेंगे कि कैसे जलाल में हम अनंत काल तक रहेंगे और हमारी पोजीशन क्या होगी मसीह के साथ। यीशु मसीह लोगों को गवर्नर बनाएगा, चांसलर बनाएगा, किंग्स बनाएगा, रूलर बनाएगा, उन्हें टेरिटरी दी जाएंगी। वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं 5 शहर उसको दे दो, 10 शहर उसको दे दो, 20 शहर उसको दे दो रूल करने के लिए। प्रभु ये टाइम है हमारा, अपने लोगों को सिखाइए अपने कलाम में से आपके लिए जीना। प्रभु मैं एक एक पे आपका खून छिड़कता हूँ कि पवित्र हाथ में एक एक के जीवन को सौंपता हूँ, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। हम सीखेंगे शाम को द रिंग ऑफ अथॉरिटी एंड द शूज ऑफ पावर दैट फादर गेव टू द प्रोडिगल सन। हालेलुया। प्रोडिगल सन एंड फादर हु इज प्रोडिगल इन लव, throwing out lavish love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord bless you. प्रभु आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की।